ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब लोगों को खुशामदीद। 13 के करीब पार्टिसिपेंट मुझे नज़र आ रहे हैं सब। तो अगर किसी को आवाज़ नहीं आए या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दे। और ये पूरी स्क्रीन नहीं आ रही अभी, देखो। वालेकुम अस्सलाम, भावलपुर। आपको स्लाइड ठीक नज़र आ रही है सबको? ज़रा लिख दें इस पे। एक मिनट, मैं शेयरिंग दोबारा से करता हूँ। यस, नहीं वो पावर, इनको स्लाइड शो नहीं नजर आ रहा ना, वो सिर्फ वो नजर आ रहा है। I'm doing this sharing once again ताकि आपको प्रॉपर्ली स्क्रीन नजर आए। उसमें आपको नजर नहीं आ रही। Who is this point? Who is administrator? ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जरा मुझे तारुफ तो करा दें। मैंने रिकॉर्डिंग राइट दे दिया वैसे। बड़ा खतरनाक वर्ड है। अच्छा जी, चलें। सबको दोबारा अस्सलाम और लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे। ये यस, अब माशाल्लाह आपको सब सही नजर आ रहा है। डॉक्टर रुमा, अच्छा ओके, एसयूटी से, गुड, वेलकम डॉक्टर रुमा। ओके, ये रुमा सिकंदर प्रॉब्ली आपका नाम है ना? अच्छा, before start of this lecture, I'll tell you one very interesting thing, that the world history divided तो तिथि before Christ and after Christ, BC, and you remember this, but now it is divided into before Google and after Google. In human knowledge and sharing of experiences, that now you can very easily say that human beings now have a very large access to the knowledge. Okay. Okay. So it is now said that the knowledge is doubled after every 2 years. It is doubled after, every 2 years. The knowledge which was present in the whole of the history of mankind was equal to that knowledge has been added in the last 20 years. पूरे thousands of years जो पहले knowledge था वो last 20 years में add हुआ है, और now every 2 years it is doubled. So why I'm talking like this, because this was probably cardiac biomarker was the first lecture in our DLP1. You remember, if you remember, and we did it in about 3.5 years ago, 2013. We started DLP with this, and when I was preparing this talk, I noticed that there is a lot of changes, and these changes are very important, and our PGs must be adhered, must be knowing that. Maybe some of these knowledge portions are not available in the textbook even. They are mostly in the articles or on the internet, etc. But you see, they are very important, and because
a lot of this knowledge is being practiced now in Western countries, and we must know it. So, cardiac biomarkers is one of the most important topics of routine biochemistry or pathophysiology. But I'll also touch with some analytical portions. It is very difficult to separate the pathophysiology and the analytical methodology when we are talking of cardiac biomarkers. So there is some merger of the two. So we'll be talking of clinical things, and we'll be talking of laboratory aspects also in today's talk. You can write your questions, you can write your queries in the chat, and Vikas, I'll request you to monitor the chat and you tell me if there is any gross problem. This is still with the sequence. We will discuss some. I want to introduce you some latest terminologies which are being used now in cardiac ischemic events. What are they called? And then we'll talk in length about the high sensitivity troponin assays, which are now in vogue. And last portion, we will discuss some markers of the heart failure. This question or this aspect of the talk we discussed in one of the CADIS lessons, and I have repeated it here. About several years ago, the definition of myocardial infarction has been totally revamped. First, if you remember, the senior people sitting here maybe remember, the WHO definition of myocardial infarction was presence of any 2 out of 3, that is clinical symptoms, ECG and cardiac enzyme. At that time, they were called cardiac enzymes. So if any 2 are present, we would call it myocardial. If anybody tells that this is the definition of myocardial infarction, then pity on him or her, because it has been totally changed now. The definition of myocardial infarction is revised now regularly. This is the third definition which I'm talking about. In 2012, the third universal definition came out, and it's a joint statement or joint publication of 2 very large world organizations which deal with the heart diseases. One is European Association of Cardiac Disorders or Cardiac Diseases. The other is American. So it is consensus definition. We have to follow it. No doubt about that. So MI has been redefined by consensus of many international organizations. A lot of emphasis given to troponins. Now, troponin assay, I tell you, is a mainstay of the definition of myocardial infarction. It is the mainstay. They've previously added troponin or CKMB, but now the whole stress is on troponin. So I tell you, as a chemical pathologist, it is our duty at least to know what is happening in the world, what your assay has the value, or what is its importance in the clinical or other definitions. So in that aspect, today's talk is very important. So you must know what is the what test, where are you at present and where you should be. I don't want to ask you, but I am sure in our most 99% of our hospitals, we are not following these tests, and we are still sticking to the old system of doing CK and CKMB and AST and LDH. Oh my God, these are totally obsolete now. Probably if we carry out a survey, the result will be horrible, and we have to start a awareness campaign about this. Okay. So if you're interested in the detailed definition, you can go to this website. The link is given. Now we come to the first patient. Patient number 1. A 50-year-old male was admitted in a hospital with retrosternal chest pain of 6 hours duration. His body temperature, pulse rate, and blood pressure were 38.2, 115 beats per minute, and 40 millimeter respectively. ECG was suggestive of acute coronary syndrome. Investigation showed troponin 0.3 nanogram per ml.
I couldn't make a slide about this, the units of troponin, but remember right from the beginning that it is better now to use nanogram per liter rather than nanogram per ml. Now it is recommended and universally accepted that the unit of troponins should be nanogram per liter, because then you get rid of those decimals. When you if you convert it in nanogram per ml, how much it will be? 3,000. No. 30 nanogram per liter. Per liter. Per liter. तो 0.3 थाउजेंड करेंगे कितना? 300. ओके, 300 मे बी, ठीक है. और इसका जो नैनोग्राम पर ml है, तो ये बहुत आसान हो जाता है फिर आपके लिए. इट्स वेरी इजी. मेरे ख्याल ये 300 होगा. 300 होगा. 0.3 into 300, ठीक है. और इसका परसेंटाइल जो है वो 100 नैनोग्राम पर ml पर लीटर, 100 नैनोग्राम पर लीटर. ओके, ये जरा करेंगे. अच्छा, इसी showed a hypokinetic, echocardiography showed a hypokinetic area. What advice you will give regarding cardiac troponin IASA, and name a more advanced. After 6 hours. Repeat after 6 hours. Very good. And what is the advanced version of troponin? IHS troponin. I know you have done this question, this patient, you have dealt this patient in CADIS, and your answers are perfect. Just to repeat your knowledge, that the definition of, I intentionally didn't discuss the actual definition in the previous slide because I wanted you to remember it, bring from your own memory. The definition of MI says that there should be rise and oblique or fall of troponins. Rise and oblique or fall of, अभी लिखा हुआ आएगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा. और इसका अच्छा टेस्ट कौन से? Troponin I. Okay. So here is the definition. It is a very jumbled up slide, but I wanted to show you the actual thing, what is written there in the actual article. So detection, see this line, detection of rise and oblique or fall of cardiac biomarkers values, preferably cardiac troponin. You see, they have written preferably cardiac troponin with at least one value above 99 percentile and with at least one of the following. The rest are the same thing. I mean, symptoms of ischemia, new significant ST segment, inversion, etc. Okay, but we have to concentrate on the cardiac troponin. So the definition says that there should be a rise of the troponin, but that rise should be accompanied by fall. Rise followed by fall. Okay? Or rise and fall or only fall. Previously high था, फिर वो fall हुआ है. ये भी हो सकता है. लेकिन एक वैल्यू जो है वो आपके जो कट ऑफ है 99 परसेंटाइल, वो क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे. एटलीस्ट एक वैल्यू उससे ज़्यादा हो. जी डायग्नोसिस लेट होता है. बिल्कुल जी बिल्कुल. तो ये जो इशू है ना लेट होने वाला, ये भी हम डिस्कस करेंगे. This has been very nicely dealt with this HS troponin. That's why HS is the real revolution. I tell you, until this introduction of this HS assay, troponin itself was not a good assay. There were a lot of problems in troponin. There was no standardized assay. The reference values were not decided. People say 99 percentile, but what is that 99 percentile? That was not standardized. And very rightly pointed out by Colonel Asif, who is our new chemical pathologist here, that you had to wait for 5-6 hours. There was no chronological advantage of troponin when you were using traditional troponin assay. There was no chronological advantage. That means you couldn't detect it early. Now that time has been reduced up to 3 hours.
not first star, again not first star, but much reduction to 3 hours. Now you huh? जी, तो from 6 hours to 3 hours, it cannot compete myoglobin, but you know myoglobin has got its own problem. You all know it's a specificity issue in myoglobin. So this HS has reduced this time. The definition also includes two or three very specific situations in which troponin can be helpful. The one situation is when there is a primary coronary intervention, PCI. If a patient has undergone PCI, primary coronary intervention, which means angioplasty, angiography, then the level should be how much the level should be for अगर उसको मतलब ये है कि एक पेशेंट का अभी थोड़ी देर पहले PCI हुआ है और उसको फ्रेश अटैक हो गया, उसको फ्रेश अटैक सस्पेक्ट कर रहे हैं वो ACS का ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का. अब क्लिनिशियन डेफिनेशन आपकी ये ट्रोपोनिन बेस्ड है, तो हाउ विल यू इंटरप्रेट ट्रोपोनिन? 5 now 5 into 5 times of what 99 percentile. 5 into 99 percentile. Because इसकी क्या वजह है अफशा? इसकी वजह क्या है? Why you have added intervention? Because troponin is released whenever there is something going on in the heart. So when you have done PCI, you have done something on the heart muscle. So that why there will be a normal release of troponin also. To cater for that, now the cutoff has been increased to 5 times. And the patient, if the patient has just gone CABG, coronary artery bypass grafting, and you suspect the fresh MI in it, then this cutoff has to be multiplied by 10. Okay. Now there is a third situation. The patient reported in your ER, हमारे फौज में समझ लें MI room में, and he died. He died. Everything is going in favor of MI, but you couldn't get a specimen of troponin. Now you have to settle sometimes the issues in the court or something, insurance issues in armed forces also. You have to know the diagnosed cause of death. So how to determine the cause? Because the definition says that it has to be troponin, and you couldn't get the sample of troponin. Postmortem sample you cannot do. So how to ascertain MI? No, not histopathology. Histopathology is yes, but all the time it is not possible to do the autopsy. Autopsy आरेख में तो नहीं होती ना. ECG तो हुई है, लेकिन आपकी definition कहती है कि troponin high होना चाहिए. फिर ECG plus है उसके. Death की cases में नहीं है. This is an exception. This is an exception to the definition. That's why they are mentioned right in the definition. If you read this, cardiac death will with symptoms etc. मैं इसको नहीं पढ़ता. अगर बहुत बिल्कुल typical death हो, ECG changes हो, तो फिर you can dispense with this requirement of raised troponin. Okay? फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है. तो ये this is very important. All chemical pathologists must know the broad outline of this definition of new definition of MI. ठीक है, basic चीज है ना. So another important question is why demonstration of rise and fall? ये लफ्ज क्यों लिखे हुए हैं definition? सीधा क्यों नहीं कह दिया बस rise of troponin? ये rise and fall और ये and oblique और ये इस तरह क्यों इतना बना के लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा है, साथ ही आंसर लिखा हुआ है. हाँ, अदर कंडीशन जैसे मैंने कहा कि जी ये बात याद रखिए कि troponin is not a marker of MI. ये बात बहुत important. Troponin is not a marker of MI. It is a marker of cardiac problem. बस अभी आगे क्वेश्चन आएंगे इसलिए हम दोबारा डिस्कस करेंगे ये. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि troponin is not a marker of MI. It is a marker of cardiac injury, cardiac problem. ठीक है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको यूज करते हैं MI के लिए, लेकिन उसके साथ और चीजें सपोर्टिव एविडेंस वगैरह होता है. बट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड.
अच्छा, यहाँ ये नई चीज मैंने ऐड की, पिछले लेसन में नहीं थी, कि व्हाट इज एमआई। व्हाट इज एमआई तो हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ एमआई। लेटली एमआई हैज बीन क्लासिफाइड बाय सेम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है इन्होंने, the same those organizations which deal with the heart disease in Europe and America. Uh, the they say that MI now is classified into 5 types, and I have not written all the 5 because we have already discussed other from 3 to 5. But what is type 1 and type 2? This is quite recent. This type 2 type of MI, this is recently been introduced, and the type 1 is called spontaneous MI, related to atherogenic plaque rupture. If there is a sudden rupture of plaque, atherosclerotic plaque, ulceration, fissuring, erosion, and dissection, local anatomical change, as far as I could understand it. It is a local anatomical change, pathological change. If it is produced, it is called type 1. And type 2 is as a whole ischemic imbalance. The oxygen demand is more than the supply as a whole. But it will lead to damage in the local area of the heart, for example, septum, inferior wall. But it is not due to some local rupture of the plaque. Okay? So this definition actually more of a morphological definition. The type 1 is local, spontaneous rupture of the plaque, and type 2 is more of the velocity of the heart. यानी पूरा हार्ट जो है वो उसमें डिमांड कम होगी. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहा है एक पेशेंट, बहुत सीवियर एक्सरसाइज, और वो डिमांड ज्यादा होगी, और को आप खाना खाने के फौरन बाद कहते हैं ना पेशेंट को खाना के बाद ना वॉक करें वगैरह. लेकिन ये जो पहले टाइप के पेशेंट है, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो बैठे होंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इनको. टाइप 3 और टाइप 4A है, टाइप 4B है, टाइप 5 है. ये वो है जो अभी आपने डेफिनेशन में किया ना, कि जिसमें वो PCI हुआ है, उसका प्राइमरी कोरोनरी इंटरवेंशन हुई है, कैपेज हुई है, डेथ हुई है, उनके साथ रिलेटेड है. तो लेकिन असल इंपॉर्टेंट टाइप 1 एंड टाइप 2 है, ये इसको ध्यान में रखिएगा. एक और लफ्ज आप बहुत ज्यादा जब आप पढ़ेंगे ना, ट्रोपोनिन्स के कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, अपनी बुक में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो दिस वर्ड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, व्हाट इज दिस. ये भी देखिए, हम क्योंकि मेडिकल डॉक्टर भी हैं, तो हमें टर्मिनोलॉजीज, जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज है, वो भी आनी चाहिए. अक्सर हम पढ़ते हैं, जैसे CKD की स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, हमने राइफल क्राइटेरिया पढ़ा है, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमने अपने टेस्ट को कोरिलेट करना होता है उससे. ठीक है. अब एक आपके रिक्वेस्ट फॉर्म पे कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि ACS क्यूरी, तो आपको पता ही ना हो ACS क्या होता है. वो तो पता है कि एक्यूट कोरोनरी, बट एक्चुअली व्हाट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज, ठीक है, उसका क्या मतलब है, तो वो थोड़ा सा मैंने बताने के लिए आपको किया है. द टर्म एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम रेफर्स टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस that occur due to acute myocardial ischemia and or infarction as a result of an abrupt reduction in blood flow through the coronary artery circulation. More of type 2, but can also occur in type 1. Whenever there is an acute change, तो बहुत acute जब चीज हो रही होगी, तो फिर आप उसको ACS कहेंगे. ठीक है. Okay. So now ACS is divided into 2 main categories. ये बहुत important है. टाइप 1 टाइप 2 तो इतना शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी 2 कैटेगरीज हैं. वन इज नॉन स्टेमी, इट इज नॉट एक्चुअली नॉन स्टेमी, इट इज नॉन ST एलिवेशन ACS, नॉन ST एलिवेशन ACS. ठीक है. एंड द अदर इज ST एलिवेशन MI ACS. ठीक है. अब जो नॉन ST ACS है, उसके 2 फर्दर सब टाइप्स हैं, ये स्क्रीन पे आप देखें ना. तो ACS 2 में डिवाइड हुआ है. वन इज नॉन ST एलिवेशन ACS, यहाँ MI का लफ्ज नहीं है, नॉन ST एलिवेशन ACS, the other is ST एलिवेशन MI. ठीक है. अब जो नॉन ST एलिवेशन ACS है, इसकी 2 टाइप्स हैं. अनस्टेबल एंजाइना,
वो मैं तो लेक्चर में हूँ। अच्छा अच्छा non this non ST elevation ACS is further divided into unstable angina and non ST elevation myocardial infarction. Okay, unstable angina also comes. And second is non ST elevation myocardial infarction, which is abbreviated as NSTEMI. NSTEMI और जो STEMI है which is ST elevation MI. ठीक है, तो ST elevation MI is the major part of this ACS major class, and this NSTE ACS is another major, and non-ST elevation myocardial. So now you have got three things. अगर इसको भूल जाए, तीन चीजें याद रखें. One is unstable angina, STEMI and non-STEMI. Unstable angina, non-STEMI and STEMI. ये तीन टर्म याद रखें. ठीक है, तो अब ये चूंकि आपका अभी क्वेश्चन भी आएगा कि इनसे कुछ हमारा हमने अपने टेस्ट को कोरिलेट करना है. ठीक है, तो तीन कौन कौन से हैं? अनस्टेबल एंजाइना, STEMI and non-STEMI. The question is the best utility of best clinical utility of troponin किस में है? ये आपके पास 5 ऑप्शन हैं, and use your critical thinking now. मैं एक छोटी सी important call है, मैं कर लूँ. क्या क्या लिख रहे हैं जी लोग? non-STEMI ACS भी देखते हैं. जरा मुझे 2 मिनट की ब्रेक दे देंगे आप लोग, if you don't mind. मुझे एक important call करनी है. ये तो इसी पे लास्ट है कि आपकी इसी की कर देंगे वो इसी पे वेस्कुलेंट सिस्टम में दोनों में अनस्टेबल सिम्टम्स है, ईसीजी नहीं है, ईसीजी पे चेंजेस नहीं है. हाँ, मतलब दूसरा करना है ना आपने, फिर इसमें ये जो डेफिनेशन दे रहा है कि राइज एंड फॉल होना, तो राइज की कोई बात नहीं है, या राइज आ रहा है तो फॉल नहीं होगा, अनस्टेबल जाएगा. कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है राइज आ रहा है तो फॉल नहीं होगा, फॉल नहीं होगा तो राइज नहीं. जी ओके, ए और ई ज्यादा है. अच्छा, ए और सी. ए है, सॉरी ये बी नहीं है, ये ए है. इसको ए कर लेंगे. अच्छा, इसकी क्या वजह है? अब आंसर तो आपने बिल्कुल ठीक दे दिया. हाँ जी. Why not STEMI and why not unstable angina? दो इसमें हैं. टाइप 1 टाइप 2 जो है ना, तो वो तो डिफरेंट है. MI है. तो ये why we say it is a very useful test for the diagnosis of NSTEMI.
and not for STEMI and not for unstable angina. जी जरा बाहर से भी कोई बोलना चाहते तो माइक ऑन करके बोल दो. यस, यही मेरा क्वेश्चन है ना तनवीर कुरुतलान, जो आपने लिखा है आप बताओ ना क्यों नहीं. STMI जो ST एलिवेशन है. हाँ, अब ST जरा सा ऊंचा बोले मैंने कहा सबको जाए ना आपकी आवाज. नहीं, अच्छा, और किसी को? सर जो स्टेमी है जब ST एलिवेशन हो गई है तब तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रॉपिक. एक्सीलेंट, दिस इज परफेक्ट आंसर. अगर तुम पढ़ो ना तो तुम बड़ी लायक हो सकती हो. अच्छा, आज से राधा कर लो, पढ़ाई शुरू करनी है. ठीक है. देखो यहाँ मैं ना आपको वापस थोड़ा सा, एक तो अपनी वो जो वर्कशॉप है, शायद कुछ याद हो किसी को, एक तो हमने डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी की वर्कशॉप जब की थी ना, हमने एक प्रोबेबिलिटी होलिस्टिक वो किया था, प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी थी ना, प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी. एक हर टेस्ट की किसी भी डिजीज के लिए प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता. वो ये कहते हैं कि स्टेमी में प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ST एलिवेशन हुई है. आप टेस्ट करवाते तो जरूर है, बहुत जरूर करवाएंगे आप, बट आप टेस्ट पे इतना डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस बहुत कम है. ठीक है, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी और पोस्ट टेस्ट, और दरमियान में लिंक कौन सा होता है, चलो बताओ, जो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी को लिंक करता है, वो कौन सा हमारे टेस्ट का पैरामीटर होता है जो उसको लिंक करता है? लाइक्लीहुड रेशियो पॉजिटिव. ठीक है, लाइक्लीहुड रेशियो. तो अब लाइक्लीहुड रेशियो भी बढ़ जाती है जब आप स्टेमी में कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, बिल्कुल लाइक्लीहुड रेशियो नुसरत ने लिखा, वेरी गुड. सिमिलरली जो जब अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं ना, अनस्टेबल एंजाइना में लाइक्लीहुड रेशियो बहुत कम है. अब ये स्पेसिफिक सेंसिटिविटी यहाँ पे ये भी दोबारा रिवाइज करा दूं कि हार्ट डिजीज के लिए निकाली जाती है टेस्ट की. एक टेस्ट की जो स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होती है वो सारी डिजीज के लिए नहीं हो सकती, वो हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा होती है. तो अनस्टेबल एंजाइना में लाइक्लीहुड रेशियो बहुत लो है और उसकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी भी बहुत लो है. तो जब प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी लो है, उसकी लाइक्लीहुड रेशियो लो है, तो पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा नहीं होगी. तो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी में और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा. कोई आपको, यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब आप अनस्टेबल एंजाइना में करेंगे ट्रोपोनिन तो वो नेगेटिव आएगी. तो इसलिए उसमें करते तो जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, लेकिन सबसे अच्छी इंडिकेशन इसकी स्टेमी में है, नॉन स्टेमी में. नॉन स्टेमी में क्लिनिशियन सस्पेक्ट कर रहा है, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, सब कुछ है, इसी में चेंजेस नहीं है. So now your troponin is playing a vital role in the diagnosis. ये बहुत इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस. तो ये स्टडीज भी जितनी हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, भरमार है लिटरेचर की. अगर आप गूगल करेंगे, लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन दिस सब्जेक्ट. तो वो नॉन स्टेमी के साथ ज्यादा उन्होंने किया हुआ है. ठीक है, क्या लिखा है जी? अच्छा, ठीक है, चलें बंद करें. व्हाट आर दी प्रीरेक्विजिट्स फॉर कार्डियो? अब हम लेबोरेटरी में आ गए. ठीक है, अब हमारी शक्ल केमिकल पैथोलॉजी जैसी बन गई. ठीक है, वो बहुत ही ड्राई किस्म की, और ठीक है, नहीं अच्छी शक्ल होती है. ओके, क्या हम कार्डियक ट्रोपोनिन जो है उसको कैसे हम करते हैं? शुड उसका एसे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? और ये जो है ना, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हार्ट के उन्होंने बताया कि it should exceed 99% troponin concentration in normal reference population. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये कैसे निकालेंगे आप? इसका ये कि आप ऐसे इंडिविजुअल्स लेंगे, आप 1000 ले लें, ऐसे इंडिविजुअल लें जिनको कोई कार्डियक इवेंट नहीं हुआ, कोई बहुत मिनिमम रिस्क है, बिल्कुल दे आर एज फिट फॉर एज फार एज हार्ट इज कंसर्न एज पॉसिबल. ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है हार्ट वाइज. आप उनका ट्रोपोनिन कर लें और उनको रैंक कर लें. ठीक है, जो जिसका सबसे ज्यादा ट्रोपोनिन है उसको टॉप पे लिख दें, जिसका सबसे कम है उसको बॉटम पे लिख दें. ठीक है, यानी नॉर्मल लोगों में, हेल्दी लोगों में
मैं ये सारी गलत टर्म में यूज कर रहा हूँ, डिजीज फ्री सही टर्म है। डिजीज फ्री लोगों को आप ट्रोपोनिन कर लें और उनको रैंक कर दें, तो जिसका ट्रोपोनिन 99th रैंक पे है वो जो लेवल है उसको आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 99 परसेंटाइल। और ये क्यों हम इसकी रेफरेंस नहीं निकालते, बिकॉज इट इज नॉर्मली यानी डिजीज जब नहीं होती तो बहुत ही लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तो 99 परसेंटाइल आप निकालते हैं अपनी पॉपुलेशन का। और सेकंड ये इसका ये है कि इसकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी 10%। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऐड कर दूं, जो मैंने आपको किया था कि सीवी 10% तो परसेंट है ना। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये परसेंटेज ऑफ वोट किस चीज का 10% हो? नहीं 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 बेटा, वो तो सीवी की कैलकुलेशन में आते हैं, मीन वो तो सीवी की कैलकुलेशन में आती है ना। कौन सा, वो कौन सा है? 99%। वेरी गुड, लिखा हमने लिखा, इट इज बीट 9%। अगर सॉरी नैनोग्राम, सॉरी 50 नैनोग्राम पर लीटर जो आपने 99 परसेंटाइल निकाला है, वॉइस नॉट ओके। तो जो आपने निकाला है, बाकी लोग भी बता दें, उसके ऊपर आप उसका 10% लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, ये एक कभी आपको तस्वीर नजर आएगी, ये डॉक्टर साहब होते हैं तमाशा। ओके, so this is the ये डिवाइस आपने देखी होगी शायद आपके छोटे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में ये यूज हो रहा होगा। ये दिस इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रोपोनिन एसेस, ठीक है। ट्रोपोनिन एसे के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा एसे होता है? ये ऐसे कौन सा होता है? क्वालिटेटिव होता है, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि शुड वी यूज फॉर दिस डिवाइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एमआई, इज इट अप्रोप्रिएट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट इज जस्ट होएक्स। ये होएक्स है, याद है 2002 में, मतलब छोटे शहर में भी ये अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है। कहीं जाके आप पाकिस्तान में चले जाएं, मेडिकल स्टोरों में बड़े होते हैं, 500-600 रुपए का ये डिवाइस आता है, वो खोलते हैं, वो करके कहते हैं जी नेगेटिव है। तो फिर आपकी वो डेफिनेशन कहाँ? शुड बी राइज एंड फॉल। फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये सिर्फ यूज कर रहे हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एमआई की डेफिनेशन में नहीं आता, बट अभी हो जाएगा। तो इट मस्ट नॉट बी यूज्ड। अब तहिया आप ये करें आज से सब, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है कि आपने अगर ट्रोपोनिन, और जरूर करें आप ट्रोपोनिन, तो आप उसकी क्वांटिटेटिव ऐसे करें। पहले जो आज का लेसन है, पहला जो प्रैक्टिस चेंज आपने करनी है वो ये कि ट्रोपोनिन शुड बी क्वांटिटेटिव। आगे हम बाद में करते। Troponin should be quantitative, it should not be qualitative. गलत information पास होती है। Okay जी, now we go to the second part, which is the HS troponin, because I told you earlier, this is the revolution in troponin assay.
हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन एसे. अब हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन एसे was named when the fourth generation of troponins came. What is the first generation, second, third? I will not go into detail, but you must know it. आप खुद जरा पढ़ लें. वो कुछ थोड़ी सी एक डेवलपमेंट है कि कैसी एंटीबॉडीज थी, फिर इस तरह की एंटीबॉडीज आ गई, फिर इस तरह की आ गई, फिर मोनोक्लोनल आई. तो जब ये फोर्थ जनरेशन आई तो इसका नाम हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन एसे है. ठीक है. और ये बहुत सारी हो सकता है और कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन 4 कंपनियां ऐसी हैं, 4 नाम ऐसे हैं जो रियली फोर्थ जनरेशन हाई एचएस ट्रोपोनिन है. ठीक है. कौन 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 बताएगा? अच्छा, ये हमारी केमिकल में ना आपको कमर्शियल चीजें भी आनी चाहिए. आपको पता है ना, हमारा बहुत डीलिंग है वेंडर्स से. रॉश एलेक्सिस, वेरी गुड. सिप्टेन, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, ट्रोपाई अल्ट्रा, वेरी गुड. ये कहाँ यूज हो रही है? K5P में ट्रोपाई अल्ट्रा, वेरी गुड. अमरीन. और तीसरी चौथी बताओ, नहीं पता? एबर्ट आर्किटेक्ट ट्रोपोनिन. एबर्ट को ना भूला करें, एबर्ट तो जाइंट है हमारे केमिकल पैथोलॉजी में. और आर्किटेक्ट, मैं इसका नुमाइंदा नहीं, हम तो नहीं यूज करते, बट आर्किटेक्ट इज अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट. ठीक है. हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी किसका है? हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी क्या है? अच्छा, रॉश ट्रोपोनिन आई एंड सिमंस ट्रोपोनिन आई अल्ट्रा. A5P में हमारे पास ये फोर्थ वन है. ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा, ये अल्फाबेटिकल है. दिस इज अल्फाबेटिकल, ताकि कोई कंपनी मुझे ना कर दे कि हमारा आखिर में लिखा है. तो और ये आपस में तकरीबन इक्वल है इनकी परफॉर्मेंस, कोई ज्यादा नहीं है. और इस पे एक वंडरफुल आर्टिकल है जो मैंने आपको कैडिस के दौरान भेजा था. आज वो जाके सारे वो आर्टिकल निकालें और सारे वो आर्टिकल पढ़ें. ये मस्ट है. केमिकल पैथोलॉजी को न्यू इंग्लैंड जर्नल का वो, बिकॉज वो है ही केमिकल पैथोलॉजी के लिए लिखा हुआ. उसने ये 4 जो एसेज हैं, ये 4 कमर्शियल एसेज एचएस वाले, उनको ट्रेडिशनल एसेज से कंपेयर किया. ट्रेडिशनल. और एक तो वो खूबसूरत एग्जाम्पल है डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी कैसे होती है. ठीक है. और दूसरा ये कि वो इनको कंपेयर किया, और उसका कंक्लूजन मैं भी बता देता हूँ. उसने कहा दे आर फार सुपीरियर, पिछले ऐसे उससे फार सुपीरियर है. एक्सीलेंट का लफ्ज यूज किया. दे हैव गॉट एक्सीलेंट थिंग. ठीक है. तो ये 4 जो ऐसे हैं, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल का आर्टिकल 2009 या 10 का है, ज्यादा नया नहीं है. ठीक है. अभी मैंने तो लेकिन वो 12 लफ्ज जरूर पढ़े आर्टिकल. अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, और ये भी हमारी लैब से रिलेटेड है. इज देयर अ 5th जनरेशन एचएस ट्रोपोनिन एसे? 5th जनरेशन है कोई? हाँ जी, मुर्तजा. और बेटा यही तो वायवे होने हैं. हाँ, यहाँ वैसे यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे ना तो आप 60% तो ले चुके होंगे, तो ये आगे के लिए होगा. सिप्तान, वेरी गुड. लेकिन सिप्तान बताइए किसका है ये 5th जनरेशन? कंपनी का नाम बता दो बस. रॉश का. ये वेरी गुड. 5th जनरेशन भी रॉश का है. ठीक है. एलेक्सिस के ऊपर 2010 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. एंड दिस इज said to be claimed to be, and it is, there are articles that it is a better performance. इसकी जो डिटेक्शन लिमिट लोअर है, LOD बहुत कम है इसकी, लोअर LOD है. एनालिटिकल रेंज इसकी बहुत बड़ी है, 3 to 10,000 nanogram per liter. 3 to 10,000 nanogram. और लास्टली इसकी CV 9 डिले हो रहा है थोड़ा सा. The essay was specific for cardiac troponin T. ये जो है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रोपोनिन्स में इंटरफेरेंस किस चीज की होती है, व्हाट आर द इंटरफेरेंस ऑफ ट्रोपोनिन. इसको मिनिमाइज करो. ट्रोपोनिन्स में इंटरफेरेंस जो होती है वो आप नहीं कर सकते. वो इंटरफेरेंस होती है ह्यूमन
अब आप टी कर रहे हैं, यू आर डूइंग टी, कार्डिक ट्रोपोनिन टी है, ये 5th जनरेशन जो है ना, और इसकी जो इंटरफेरेंस है वो आई है, ठीक है। एट्रोफाइल एंटीबॉडी नहीं, एट्रोफाइल नहीं, इतनी भी लुट नहीं है बेटा, ये स्पेसिफिक इंटरफेरेंस होती है। ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन सी है, स्केलेटन मसल ट्रोपोनिन है, स्केलेटन मसल में भी ट्रोपोनिन होती है, अभी हम देखेंगे। hemoglobin concentration when it is more than 1000, ठीक है, वो है इंटरफेरेंस है। तो इसकी खूबी है व्हाई इट इज बेटर 5th जनरेशन, बिकॉज इसमें ये इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि हीमोग्लोबिन शुड बी लेस देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज्यादा होगा, यानी हिमलाइज सैंपल में आपने इसमें भी नहीं करना, हिमलाइज सैंपल में बिल्कुल नहीं टेस्ट करना। ये केमिकल पैथोलॉजिस्ट नोट कर लें, प्लीज नोट इट। You should not do troponins in a hemolyzed sample. और जो कार्डिक पेशेंट है उसमें हेमोलिसिस नहीं होनी चाहिए, क्यों? वो तो फिर इसका मतलब सैम्पलिंग एरर है। कुछ डिजीज होती है ना जिसमें आपको करना पड़ता है हेमोलिसिस, जैसे HDN है, हेमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न है, उसमें अगर पैथोलॉजिस्ट कहे जी मुझे ये हेमोलाइज सैंपल मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप दुकान बंद कर लें अपनी। आपने तो वो सैंपल ही वही हेमोलिटिक है, तो उसमें तो करना है, लेकिन इसमें तो कोई हेमोलिसिस नहीं हो रहा, तो यू कैन वेरी इजीली रिपीट इट। तो डोंट डू इट इन इवन 5th जनरेशन में भी इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डूइंग ट्रोपोनिन्स, परफॉर्मिंग ट्रोपोनिन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये जरा बेसिक सवाल है कि ये LVF डिटेक्ट करता है, कार्डिक स्पेसिफिसिटी, वेरी गुड, ये उस लेसन से मैंने सवाल लिया, ठीक है, कि कार्डिक स्पेसिफिसिटी इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। अर्लियर राइज, अब HS में कुछ आ गया है, लेकिन प्राइमरीली अर्ली राइज की वजह से नहीं आया गया, ये इसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से है, ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल देखें, अभी आएगा सवाल, मुझे बताइए कार्डिक ट्रोपोनिन कहते किसको हैं? कार्डिक ट्रोपोनिन क्यों स्पेसिफिक है? व्हाई इट इज सो मच? ये बात याद रखिए कि कार्डिक ट्रोपोनिन, द अदर इज स्केलेटन ट्रोपोनिन। स्केलेटन मसल की अपनी ट्रोपोनिन, स्केलेटन मसल की अपनी ट्रोपोनिन होती है। तो व्हेन यू से वी आर डूइंग ट्रोपोनिन, यू आर डूइंग कार्डिक ट्रोपोनिन। इसलिए अच्छे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, छोटा सी डालते हैं उसके साथ। छोटा सी क्यों डाला होता है? कि कार्डिक है, वी आर टॉकिंग ऑफ कार्डिक ट्रोपोनिन सी, वी आर टॉकिंग ऑफ कार्डिक ट्रोपोनिन आई। देयर इज आल्सो स्केलेटन ट्रोपोनिन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट। सो दिस सिंगुलर थिंग मेक्स इट सच ए स्पेसिफिक मार्कर फॉर हार्ट का बहुत स्पेसिफिक मार्कर है। लेकिन एक क्वेश्चन ये कि एक और ट्रोपोनिन भी होता है, वो होता है ट्रोपोनिन सी, लेकिन उसके इश्यूज ये हैं, प्रॉबेबली मुझे इतना नहीं इसकी डिटेल पता, कि उसकी स्पेसिफिसिटी, कार्डिक स्पेसिफिसिटी का इशू है, वो प्रॉबेबली वो स्केलेटन में भी उसकी बहुत सिमिलैरिटी है, या क्या इशू है, बहरहाल वो नहीं मार्केट होता, वो नहीं यूज होता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लूम करेगा, हर बंदा आपसे पूछेगा, जो अभी मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ ना, वो हर बंदा आपसे पूछेगा आई करना चाहिए, टी करना चाहिए, टी करना चाहिए, आई करना चाहिए, टी में आई क्या फर्क है? हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं, दे आर ऑलमोस्ट सेम। टॉप आई के मतलब कुछ क्लेम्स थे, और 2000 की एक सर्कुलेशन, बहुत बड़ा जर्नल है सर्कुलेशन के नाम से, उसका आर्टिकल है, और उसके बाद भी शायद होंगे, कि टॉप आई इज बेटर देन टॉप टी इन पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि किडनी की जो एक्सक्रीशन है वो टॉप टी की ज्यादा है। किडनी के जो डिस्पोजल है टॉप टी का, वो थ्रू किडनी ज्यादा है, तो अगर किडनी रीनल फंक्शन इम्पेयर होंगे तो टॉप टी ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन बाद में इस पॉइंट को भी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन अगर कोई, आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये किसी स्टेज पे ये क्लेम हुआ था कि टॉप टी जो है ना इज अ पुअर मार्कर ऑफ हार्ट इन पेशेंट विद CKD, और CKD में बहुत ज्यादा हार्ट के इवेंट्स होते हैं,
जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा आपको कराने पड़ते हैं, वो उनके कार्डियक इवेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप जब उसमें प्रेफर करते हैं आई, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो नंबर 3 पॉइंट है, ये बात याद रखिए कि टी जो है ना सिर्फ एक कंपनी बनाती है, केमिकल पैथोलॉजिस्ट को, कि देयर इज ओनली वन कंपनी which makes tea, and that is Roche. तो troponin tea is proprietary of Roche. जो उनका 4th जनरेशन है वो भी Roche का, 5th जनरेशन भी Roche का, ठीक है। भाई जी जरा मुझे बताइए, Roche जो troponin Roche पे होगा 4th और 5th जनरेशन, उसकी मेथड कौन सा होगा? Which method you are talking about? Where? नहीं बेटा, कौन सा मेथड, कौन सा है? सैंडविच तो है, रॉश में एलेक्सिस है, इंस्ट्रूमेंट है, अब उनका पास 6000 भी आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल, वेरी गुड, इट इज इलेक्ट्रोकेमी। हाँ उधर से ये सुल्तान, माशाल्लाह वेरी गुड सुल्तान, आप जनवरी वाले कैंडिडेट हो ना माशाल्लाह, हॉट सीट पे आने वाले हो। तो ये जो है ये टॉप टी इज प्रोप्राइटरी ऑफ रॉश, बाकी सारी कंपनियां टॉप आई बनाती है, सारी कंपनियां टॉप आई बनाती है, रॉश सिर्फ टॉप टी बनाती है। और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ रॉश का है, बाकी सारी कंपनियों के केमिकल है। जो जब आप लफ्ज इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, इट इज ओनली बाय रॉश, सिर्फ रॉश का इक्विपमेंट है जो अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इज बेटर देन केमिकल, ये एक लता बहस है, और ये ज्यादातर ये प्रूव है कि कोई इतना फर्क नहीं है। हाँ केमिकल बेहतर है, बिल्कुल, वो डिपेंड करता है केमिकल ऐसे के ऊपर ना, वो लोकाई वाला है या नहीं है। तो लेकिन ये नहीं है मैं कह रहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल बेटर है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ रॉश के इक्विपमेंट में होता है, और टॉप टी सिर्फ रॉश का है, बाकी सारे टॉप आई बनाते हैं। और एक छोटी सी चीज और बता दूं कि रॉश टॉप आई भी बनाता है, रॉश दोनों बनाता है, इसीलिए जो मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडी आपको बताई थी उसमें रॉश का टॉप आई भी था, दोनों थे, टॉप टी भी रॉश का है, टॉप आई भी रॉश का है, लेकिन बाकी सारी कंपनियां सिर्फ टॉप आई बनाती हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग चीजें हैं, और ये तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल को आप लिख के दे दो जी, एक आप एक टेंडर फ्लोट कर दो कि मुझे टॉप टी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है टॉप टी बहुत अच्छा है, सारे हंसेंगे आप पे, इसका मतलब है कि आप सिर्फ रॉश को लेना चाहते हो, यही हो गया ना मतलब। हाँ अगर आपका कोई मुकमगा आया तो फिर तो अलग बात है। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एमआई, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद एचएस ट्रोपोनिन इज, अब आप एमआई की डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, अर्ली फॉल, जल्दी नीचे आ जाता है, ये अल्फाबेटिकल है इसलिए इसको आपको फॉल पहले आ गया, हायर एलओडी यानी इसकी डिटेक्शन लिमिट ज्यादा है, लेट राइज, पुअर सेंसिटिविटी, पुअर स्पेसिफिसिटी। ये जरा सोच के बच्चों बताओ कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एचएस ट्रोपोनिन का। अब आपने एचएस ट्रोपोनिन पढ़ लिया ना, थोड़ा सा बता दिया कि एचएस से मतलब क्या है, हाई सेंसिटिव, तो फिर आप बताइए इसमें अर्ली फॉल, अच्छा, पुअर सेंसिटिविटी, ओके आगे चलें। नहीं आपको आना चाहिए, मैंने इतने गला पाड़ पड़ के पढ़ा रहा हूँ आप। अर्ली फॉल है, ओके हाँ जी बताइए। नो नो लेट, हाँ है नहीं, तो ट्रेडिशनल से तो बेहतर है, तो मैं बता रहा हूँ 3 आवर्स में, तो इसकी स्पेसिफिसिटी पुअर है। अब ये बड़ा, यही तो मैंने आपको बताना था कि इसकी स्पेसिफिसिटी पुअर है, सेंसिटिविटी तो अच्छी है, हाई सेंसिटिव कहते हैं इसको।
अब थोड़ा सा जरा सा कंसंट्रेट करें मेरी बात पे। जो लोग कोई कराची गया हुआ है, जो उधर गए हुए हैं, कराची वाले अगर इस्लामाबाद आए हुए हैं तो वापस जरा आ जाए, ठीक है। तो ये देखें कि लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, डायग्नोसिस ऑफ एमआई। एचएस ट्रोपोनिन का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी, ये राइज तो 3 आवर्स विच इज गुड इनफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेट ये अर्ली फॉल भी नहीं करती, 8-10 दिन इसका रहता है, तभी तो एलडीएच डिस्पेंस हो गया। जब से ट्रोपोनिन आया एलडीएच की कोई जरूरत नहीं रही, इसका बहुत लेट फॉल है, 8-10 दिन तक ये रहता है, बाज 2 वीक्स कहते हैं, ठीक है। वो मैं बेसिक चीजों पे नहीं गया, वो आपको बताइए। अच्छा, हाई एलओडी इसकी बहुत लो है, अभी तो हमने देखा है, इसीलिए तो है, वो है इसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है बहुत लो है, हाई नहीं है, लो है, कि ये कोई भी कार्डियक इवेंट होगा तो ये बढ़ जाएगा। हार्ट स्पेसिफिक है, एमआई स्पेसिफिक नहीं, एमआई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक प्रॉब्लम। और जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें परफॉर्मेंस असेस की हुई है एचएस की, तो वो आपको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि इनकी एमआई स्पेसिफिसिटी कम है। ये नहीं मैं कहता पुअर है, लेकिन कम है। वैसे पुअर का लफ्ज लिखा है, आपको जरा थोड़ा परेशान करने, लेकिन ये कम है। बार ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपने देखी हुई है, ये मेरे इस पॉइंट को एम्फसाइज करती है कि मायोकार्डियल इंजरी कोई भी हो तो ये ट्रोपोनिन जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। टेकिकार्डिया हो, रीनल फेलियर में तो उसकी ऑब्वियस वजह और है, वो तो उसकी पूरी एक्सक्रीशन है, ठीक है। नॉन कार्डिक मेजर प्रोसीजर्स में भी बात बढ़ जाते हैं, कार्डिक प्रोसीजर्स में भी बढ़ते हैं, सब में बढ़ते हैं, ठीक है। सो कार्डिक स्पेसिफिक है बट नॉट स्पेसिफिक फॉर एमआई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपकी जो अगर जनरल नॉलेज है तो आप फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड नॉन कार्डिक यूज ऑफ एचएस ट्रोपोनिन, नॉन कार्डिक यूज कह लें या हाँ यूज में ट्रोपोनिन का सबसे ज्यादा क्या है? कॉर्नरी रिस्क असेसमेंट आप कर सकते हैं इससे, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की डायग्नोसिस, मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन, रीनल इनसफिशिएंसी को डायग्नोज कर सकते हैं, स्प्लेनिक इंफार्क्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। नॉन कार्डिक यूज, जनरल नॉलेज। रीनल के लिए लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन बहरहाल इट इज नॉट यूज्ड फॉर रीनल असेसमेंट। ये वन बेस्ट क्वेश्चन है, ट्रू ऑल कैन बी करेक्ट। सी मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन। और कोई? एक्सीलेंट, आखिर उस्ताद होते हैं। हाँ, कनासिर ने बिल्कुल कहा, सही कहा। बहुत स्टडीज हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता। ये मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन में एक्सीलेंट मार्कर। ये कोलेस्ट्रॉल करते हैं, मेरा ड्रॉप भी कर दें, करते हैं लोग, हमारे लोग करते हैं। आपको पता है वो आते हैं कोलेस्ट्रॉल करो जरा ट्रोपोनिन भी कर दो कोई वो इसको रिस्क असेसमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर, ऑफ कोर्स शुड नॉट। स्प्लेनिक इंफार्क्ट के लिए नहीं है ये, स्प्लेन से नहीं निकलता। इंफार्क्शन का तो लफ्ज आता है पर हार्ड नहीं है वहाँ, ठीक है। मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन, अब मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन में ये इतना अच्छा मार्कर है। तो एक आर्टिकल में दिख रहा था, उन्होंने कहा, वो 5th जनरेशन पे है, मैं आपको भेजूंगा। उन्होंने जो है ना, जब 5th जनरेशन में जाहिर है लिमिट कम हो गई है, जो 99 परसेंटाइल है ना 5th जनरेशन की, वो लो है, ठीक है। वो कोई 13 नैनोग्राम पर लीटर है। तो जो पुराने की थी वो तकरीबन 30 है। तो उन्होंने यूज कर रहे हैं, उनमें फिर आगे फर्दर एमआई वगैरह इवेंट्स कितने पिक हुए, तो बड़ी मायूसी हुई उनको कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 का लेंगे, 30 का को खास नहीं आता फर्क, कुछ ने कहा आता है, कुछ ने कहा नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज आती है कि 13 और 30 में जिन लोगों का इंक्रीज होता है, यानी 13 से ज्यादा होता है, 30 से कम होता है, वो उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। बाकियों में भी ज्यादा होगी, ये नहीं मैं कह रहा, यानी 30 से बाद भी ज्यादा होगी, 50 से बाद भी ज्यादा होगी, लेकिन बाकियों में 4th जनरेशन से कोई फर्क नहीं है, 4th 5th जनरेशन। लेकिन अगर आप 30 से 13 कर देते हैं, और एक पेशेंट है जिसका 13 से बड़ा हुआ है, इस तरह गौर से सुने बात, अब पेशेंट है जिसका 20 है फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं एमआई
का में तो कोई इतना मजेदार नहीं है उसका इफेक्ट एमआई के डायग्नोसिस में और इसमें, लेकिन मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा मार्कर है। यानी उस जिस मरीज का 13 की बजाय 20 आया है, 25 आया है, उनके मोर्टेलिटी के चांसेस some more more cardiac muscle damage। अभी हम आगे जाके देखेंगे, this is also a very good marker of heart failure। troponins are also very good markers of heart failure। हम यूज नहीं करते वहां, लेकिन ये उसके भी मार्कर हैं, बिकॉज वहां मायोसाइटिक इंजरी होती है। जब हार्ट फेलियर होता है, वो एक्सपैंड करते हैं तो कुछ ना कुछ इस्केमिक इंजरी भी होती है मायोसाइट्स की। दैट इस्केमिक इंजरी कॉजेज रिलीज ऑफ ट्रोपोनिन्स। तो मे बी कि वो मतलब इनिशियल स्टेज पे जो जरा सा राइज हुआ है, जो माइल्ड सा राइज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम फेलियर एलिमेंट। और अगर उस पेशेंट में फेलियर का एलिमेंट ज्यादा है तो उसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट के मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन भी है। ये पुराना सवाल है, घिसा पिटा, लेकिन मैंने कहा चले आपसे पूछ लेते हैं। 44-year male patient has reported in A&D of hospital with myocardial infarction of 1 hour duration। सबसे अच्छा मार्कर कौन सा है? मायोग्लोबिन का। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है? स्पेसिफिसिटी, बिकॉज मसल से। तो ये बेचारा बहुत सालों से है मार्केट में, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि हालांकि बहुत जल्दी 1-2 घंटे में आप इसको आप पिक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका, ठीक है, ये हमने क्या हुआ है ये कि अभी CKMB राइज होना भी नहीं शुरू होता, तो ये माइक बंद कर लें प्लीज। अभी CKMB बढ़ना भी नहीं शुरू होता तो मायोग्लोबिन की डाउन हो जाता है। देखिए ना, ये CKMB बढ़ रहा है अभी उसकी पीक आई है तो मायोग्लोबिन, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। वैसे मैंने आपकी रिवीजन रखा था। पेशेंट नंबर 3 भी आपने कुछ किया हुआ है। IGD इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन पेशेंट्स ऑफ ESRD। तो इसमें जी टॉप आई, ठीक है, वो इसके जैसे मैंने बताया तो ट्रोपोनिन टी के बारे में इश्यूज हैं, ठीक है। चलिए, पेशेंट नंबर 4, 55-year-old male admitted in CCU for the management of MI on third day। यह fresh attack अगर हो जाए तो फिर कौन सा करना चाहिए? ट्रोपोनिन आई करना चाहिए। पहले ये था बिकॉज CKMB खत्म हो जाता है ना, अच्छा मार्कर है फॉर फ्रेश MI के लिए, लेकिन फिर स्टडीज आ गई कि नहीं, उसमें भी अल्दो वो कम नहीं होता, लेकिन अगर फ्रेश MI हो गया तो उसकी दोबारा पीक आ जाती है। तो अगेन ट्रॉप आई इज अ बेटर मार्कर। तो CKMB को तो बेहतर आप खुदाफिज कह दें। और ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, ये उसी स्टडी जिसने ये बताया कि ट्रॉप आई इज बेटर इन फ्रेश अटैक, ठीक है। तो CKMB की प्रैक्टिकली आपको जरूरत नहीं। ट्रॉप आई इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेट ऑनसेट, अर्ली, फ्रेश अटैक, रीकैनलाइजेशन, मोर्टेलिटी प्रेडिक्शन, हार्ट फेलियर। तो अगर ये इस तरह क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? बोले बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? Okay, we come to the patient number 5। ये भी आपने किया, अभी आ जाएगा। हाँ जी, 52-year-old male was admitted in an A&E of a state-of-the-art hospital with chest pain of 3 hour duration। His cardiac markers carried out on admission showed CKMB उसका नहीं राइज हुआ, टॉप भी नहीं राइज हुआ, इवन HS भी नहीं राइज, सीरम मायोग्लोबिन राइज था, और फैटी एसिड, हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन जो थी ना वो रेज थी। What is the most common diagnosis? Write one possible role of heart type fatty acid binding protein in the diagnosis of coronary artery disease। जी, क्या है इसमें? MI, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ये हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, दिस इज ए नॉवल मार्कर, दिस इज अ न्यू मार्कर फॉर क्लेम टू बी अर्ली डायग्नोसिस। तो इसको जरा सा बस ज़हन में रखिए, ये को बहुत प्रॉमिसिंग नहीं हुआ, लेकिन
ये एक रिपोर्टेड मार्कर है, पब्लिश्ड है, और इसमें कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन के लिए बेटर देन टॉप आई। दिस इज द क्लेम। नाम आपको याद होना चाहिए, हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे एक लिवर टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग, वो किस डिजीज में उसका क्लेम है? लिवर टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए, ठीक है। पेशेंट नंबर 6, ये भी आपने किया हुआ है पिछले उसमें। 38-year-old pregnant lady underwent combined test in the late first trimester with following results: ultrasonography normal, beta HCG normal, serum pregnancy associated plasma protein A papa, high MOM as per gestation age. MOM is multiple of median. Later, after further investigation, gynecologist declared the patient free of any risk. हाँ, ये पापा जो है ना, इट इज यूज्ड फॉर एंटीनेटल प्रीनेटल असेसमेंट, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके लिए तो यूज होता है। लेकिन एक क्लेम ये है कि ये भी कॉरोनरी रिस्क फैक्टर है, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के डायग्नोसिस में भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं आया। और इसी तरह फ्री IGF-1 भी इसमें है। तो ये नए मार्कर्स हैं जिन पे कुछ काम हुआ है और कुछ अभी हो रहा है। इवन हमारा पेपर है पापा एज ए मार्कर ऑफ CAD, जो JCPSC में छपा था 2011 में FIP से। मेरा ख्याल माजिद ने किया था, किसी आप में से आपके किसी को तनवीर ने मेरे ख्याल किया था, ठीक है। तो ये इस तरह की कम से कम नाम आपको आने चाहिए। आप लोग कहते हैं कि मैं बढ़ा देता हूँ सिलेबस बढ़ा देता हूँ, लेकिन इसलिए कम से कम नाम आने चाहिए। देखिए ना, अब अगर कोई वो ऑथर है उस आर्टिकल का और वो आपका एग्जामिनर है तो पूछ नहीं सकता। अब आप टॉप ऑफ दी उसमें हैं, एग्जाम दे रहे हैं कि पापा क्या होता है, उसकी क्या इंडिकेशन है, उसमें और क्या क्लेम है, तो आपको उसका आर्टिकल तो पढ़ा होना चाहिए ना। चलिए, हम टाइम शॉर्ट हो रहा है, इसलिए अब हम जल्दी बायोमार्कर्स ऑफ हार्ट फेलियर करते हैं, ठीक है। A 71-year-old male was admitted in a coronary care unit. हाँ, ये आपने किया हुआ है, ठीक है। कौन सा है ये? BNP, ठीक है। BNP और अच्छा, यहाँ बस ये बता दूं कि BNP और एंटी प्रो BNP में क्या फर्क है, मुझे बताइए जरा। पहले आप लोग बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BNP और एंटी प्रो BNP? कॉस्ट के अलावा नहीं, वो तो है, लेकिन क्लिनिकल यूटिलिटी में क्या फर्क है? कोई फर्क। ये भी अगेन कोई फर्क नहीं। ये भी कंपनियों का है, कोई कंपनी जो है ना वो BNP बनाती है, कोई एंटी प्रो BNP बनाती है। एंटी प्रो BNP का मतलब है कि जो प्रो BNP है, जो BNP से पहले मॉलिक्यूल है, उसका एंटामोनिम। तो प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं। हमारे यहाँ हम तो खैर अभी नहीं कर रहे, लेकिन BNP ज्यादा यूज होती है, करेंगे इंशाल्लाह हम भी शुरू। So determination of biological standards for diagnosis, prognosis and treatment of heart failure, ये BNP का मकसद है। And it is not brain, पहले इसका नाम ब्रेन था, लेकिन अब इसका नाम B टाइप है क्योंकि ये एट्रियम से निकलता है। It is not brain. So amino terminal peptide equivalent and terminal और pro BNP और एंटी प्रो BNP, ये दो में। और ये भी बहुत अच्छे प्रेडिक्टर है, मोर्टेलिटी प्रेडिक्टर है। इट्स आल्सो अ वेरी गुड मोर्टेलिटी प्रेडिक्टर, ठीक है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये इसमें बताया है कि रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, यानी किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, किसमें कम है, वो उसके लिए ये मार्कर यूज होता है। तो अगर जिसका लेवल मोर देन 700 है, उसकी डेथ ऑफ और रीएडमिशन, यानी ये दो जो उसके इवेंट्स हैं, या डेथ हो गई है या रीएडमिशन हो गया, वो ज्यादा है। ऐसे लोग जिनका मोर देन 700 था और इनका N41 था स्टडी में, और जिनका 350 to 700 था उनका N50 था और उनका उससे कम था रेट, और सबसे कम वो थे जिनका लेस देन 350 था, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे है, ये हैजर्ड रेशियो, जिसको ऑड रेशियो भी कहते हैं, वो ये स्टैट तो आपको आनी चाहिए ना, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑड रेशियो भी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ BNP. As the BNP is high, there is more chance of, ये मैं PNS शिफा का मुझे एक्सपीरियंस है, वहाँ हमने शूट किया था BNP,
तो बहुत जिनमें हार्ट फेलियर होता है बहुत ज़्यादा, इवन थाउजेंड भी आता है ये, ठीक है। थोड़ी सी इस टेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये इसका प्रोबेटिव फैक्टर है कि एक टेस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 1200 कॉस्ट करता है जो रीजन को ओवरहेड इसके अलावा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वरना ये टेस्ट बहुत अच्छा और पाकिस्तान अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वहाँ बीएनपी अवेलेबल है, ठीक है। तो वी मस्ट डू बीएनपी, कोई ऐसा वो नहीं है। इसके अलावा एक और टेस्ट है एडिनोमेडुलिन, ये अमाइनो एसिड है और प्रोटीन है ये, और ये भी है, ठीक है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको, गूगल का करना आपका खुद काम है, ठीक है। एडिनोमेडुलिन इज सेड टू बी अ मार्कर फॉर हार्ट फेलियर। ST2 को ST2 ही कहते हैं, मुझे इसका मिल नहीं सका कि पूरा क्या नाम है, आप लोग चेक कर लेना। ये अनदर कैंडिडेट फॉर हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर मार्कर एक्चुअली बहुत सारे हैं, मेरे पास वो लिस्ट है, वो आर्टिकल है, मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट मार्कर हैं फॉर हार्ट फेलियर, ठीक है। और थर्ड जो रिलेटिवली न्यू है वो 3 है, एक क्रोमोग्रेनिन ए का नाम, क्रोमोग्रेनिन ए है, जिलेक्टिन 3 है, एंड प्रोटियोजेरिन, मुझे भी नाम नहीं आता, प्रोटियोजेरिन। मैंने कोई काम शाम नहीं किया हुआ इस पर, मुझे नाम आता हो, लेकिन जिलेक्टिन 3 जो है ना जरा ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ठीक है। जिलेक्टिन 3 पे छोटा सा मूवी क्लिप भी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उसमें डाल दूंगा, क्या नाम है, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। तो ये नए मार्कर्स हैं। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, जिससे मैं क्लोज करता हूं, कि ये एक जगह लिखा था कि आज से मे बी आफ्टर डेकेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर पीपल विल बी एडवाइजिंग प्रोफाइल एडवाइज हो रहा होगा, ठीक है। प्रोफाइल करवा रहे होंगे कि ये फलाना एस्पेक्ट है, ये फलाना एस्पेक्ट है, ये फलाना, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इतने ज्यादा ये मार्कर आ रहे हैं ना इसके, कि ये थोड़ा सा मैं जिलेक्टिन 3 के बारे में बता दूं। जिलेक्टिन 3 इज लाइक हाइलोरोनिक एसिड इन लिवर। लिवर के वो आपने क्या वो क्या था, फाइबर टेस्ट है, वो जो प्रोफाइल है उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। इसी तरह हार्ट में फाइब्रोसिस के मार्कर्स हैं, और ये जिलेक्टिन 3 इज द मार्कर ऑफ फाइब्रोसिस इन हार्ट। फाइब्रोसिस होगी तो हार्ट फेलियर होगा ना, फाइब्रोसिस विल लीड टू हार्ट फेलियर, ठीक है। तो और इसी तरह के मार्कर्स हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आपको सारे नाम आने चाहिए और हर की डिटेल आनी चाहिए, लेकिन 2-3 अगर आपसे नाम पूछे जाएं कि बीएनपी के अलावा भी कोई मार्कर है, तो आप ये क्रोमोग्लोबिन ए है, जिलेक्टिन 3 है, ठीक है, ST2 है, तो ये कुछ नाम आपको आने चाहिए, एरोमोडुलिन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम 2 मिनट तक अभी इसको खत्म नहीं करते। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एनी सर वो जो आपने एक सीवी का पॉइंट किया था एक्सप्लेन, वो उसमें आवाज क्लियर नहीं थी, अगर वो दोबारा आप एक्सप्लेन कर दें। कौन सा 60% at 99 percentile वाली। अच्छा 10% सीवी का ये कैसे निकालते हैं वो मैंने ना सॉरी 10% सीवी का ये बताया था कि सीवी तो होती है ना मीन एसडी ओवर मीन इनटू 100। आप एक आप मसलन आप टेस्ट शुरू करते हैं तो आप मैसेज वैलिडेशन करते हैं, उसकी प्रिसीजन स्टडी करेंगे। आप प्रिसीजन स्टडी की आपने 30 या 60 जितने भी सैंपल लिए आपने, इन जो इन बिटवीन सीवी होती है इंटर बैच, वो आपने निकाल ली, उसकी मीन एसडी निकाल ली, और एसडी और मीन इनटू 100 करके उसकी सीवी निकाल ली, ठीक है। अब सीवी जो आएगी वो परसेंटेज में आएगी। अब पॉइंट ये है कि वो तो परसेंटेज में है ना, आपने कहाँ पे अप्लाई करनी है सीवी? हर मरीज के सैंपल पे अप्लाई करेंगे। मसलन एक पेशेंट का 80 आ गया है, 80 नैनोग्राम पर लीटर आ गया, आप उस पर सीवी अप्लाई करेंगे। कहाँ पे सीवी अप्लाई करेंगे? आप वहां बेशक अप्लाई करें, उसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीवी आप उस 99 परसेंटाइल कट ऑफ पे अप्लाई करें। मसलन आपकी कट ऑफ 99 परसेंटाइल कट ऑफ जो है ना वो 13 है या 15 है, 15 नैनोग्राम पर लीटर। तो आपकी सीवी 10% का मतलब है 1.5,
1.5 नैनोग्राम। सर जैसे सीवी बनना जो है इतनी कंट्रोल बनाते हैं अगले में। अच्छा मैं समझ गया जी। और एक्यूरेसी हम हाँ। अपने टेस्ट की देखते हैं कि हमारे टेस्ट सही रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दैट केस अगर हम परसेंटाइल निकाल दें तो अपने नहीं ये नहीं है कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये जो सीवी हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली सीवी जो है 10% सीवी, दिस इज नॉट द डेली क्यूसी सीवी। ये वो सीवी डेली क्यूसी में आने पास वो सीवी, ये वो सीवी है कि आपने अभी ट्रोपोनिन का एक एसिड शुरू किया, लेट्स से आपने 4th जनरेशन 5th जनरेशन शुरू किया, ठीक है। उस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आप उस पर रेप्लिकेशन स्टडी करनी होती है, के पार्ट के तौर, एंड इट इज मस्ट, जरूर करें आप जब आप मैथड वैलिडेशन में रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे। अच्छा, उसकी सीवी जो भी सीवी आ रही है उसके आपने परसेंटेज निकाली, नहीं एसडी मीन निकाल के सीवी निकाली ना आपने, तो पहले आपने एसडी निकाली, मीन निकाली और सीवी निकाल लिया आपने। वो सीवी आपकी आ रही है फॉर एग्जांपल 15%, तो हम उससे वो नहीं निकाले। हाँ वो नहीं निकाले, वो इसका मतलब है हम मेथड पे ही अप्लाई कर दें। मेथड मेथड हाँ जो है जब आप लॉन्च करते हैं ना टेस्ट, उस वक्त जो सीवी है ना उसकी बात हो रही है कि वो 10% होनी चाहिए कट ऑफ लिमिट पे। ये तो हर टेस्ट में इसी तरह नहीं लेकिन वो सीवी आप देखो, ग्लूकोज की सीवी कहाँ पे अप्लाई करोगे? नहीं इनिशियल एप्लीकेशन स्टडी में भी सीवी निकाली जाती है ना, कैप कमीशन करने के लिए करते हैं, लेकिन आप 100 मिलीग्राम भी है, 126 भी है, 50 भी है, 180 भी है, तो उसके तो मल्टीपल हैं, तो हर जगह आप उसके हिसाब से अप्लाई करोगे। लेकिन ट्रोपोनिन में आप सिर्फ एक जगह अप्लाई करोगे, वो 99% आएगा। अच्छा, ये कि जो ट्रोपोनिन की सीवी है वो कांस्टेंट होगी जो बाकी एलिमेंट्स की वो कंसंट्रेशन मेडिकल जी लेकिन वो यूजुअली एक ही होती है मेडिकल। ग्लूकोज की एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल है, अब एएलटी की तो एक ही होगी ना, हाँ इनकी ज्यादा होती है कुछ जी। 99% हमारी हमने उसको 50 मतबा रन कर लिया, हाँ ठीक है, 30 मतबा रन कर लिया और उसकी सीवी निकाल ली, वो 15% है। अब 15% ऑफ 300 15% है, हाँ तो हम रिजेक्ट कर देंगे बिल्कुल। अगर 9% हम इस तरह करेंगे, या हम पहले जो है ना सीवी निकाल लेंगे और फिर जो है ना उसको करेंगे। नहीं पहले हम रेफरेंस निकालेंगे, 99% निकालेंगे, उस लेवल पे हम 30 मतबा रन कर लेंगे। जो कंफ्यूजन आप लोगों का वो मुझे समझ आ गया। कंफ्यूजन ये है कि एक तो ये कह रहे हैं कि लेस देन 10% हो, ये तो ठीक है बात, लेस देन 10% में तो 99% की जरूरत ही नहीं है, हाँ ठीक है, किसी की 9% तो ओके है। लेकिन जब आप उसको एसए पे अप्लाई करने जा रहे हैं ना, जब आप एसए पे अप्लाई करेंगे तो आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे उसकी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो आप 99% से निकालेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जो नैनोग्राम पर लीटर में आ रही है, ठीक है ना। मसलन अगर आपका बहुत लो एसए है, आपका एसए जो है ना वो उसकी कट ऑफ बहुत लो है, जो उसकी आपने निकाली है 99% जो निकाली है वो 13 है, यूजुअली 30 होती है और ट्रेडिशनल एसेज में और भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस सूरत में आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 30 की 3 नैनोग्राम है, तो उसके बाद जब आपने डे टू डे अप्लाई करना है तो आप वो वाली जो 3 नैनोग्राम है ना वो अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली डिसीजन आपका उसके अराउंड हो रहा होगा। ये है इसका। और कुछ
यानी आपको सवाल जवाब समझ आ गया? जी सर, सेकंड एक और चीज सर, जब अगर हाँ। हम सीवी लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमें फिर कैप की सीरीज जब हम लेते हैं सर, जो हम हाँ। 1/3 वाला 1/3 या 1/4 का हम यूज करते हैं कि 1/3 ऑफ टोटल अलाउबल एरर और वो चीज, तो सर जब हम सीवी लेंगे तो उसमें हम कैप की जब लेंगे उसमें हम 1/3 या 1/4 नहीं करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई ना। वो जो टोटल अलाउबल एरर वगैरह है ना, वो उसमें सीवी नहीं है, वो एसडी है। जी सर, उसमें हम एसडी लेंगे ना। वो एसडी है, वो एसडी है सर ना, वो और चीज है। वो तो ठीक जब है आप सर। डिसीजन स्टडी कर रहे होंगे आप कहेंगे the SD should be less than 1/4 of the total allowable error. सर चीज है ठीक है सर। जो सीवी है वो कैप ने दी हुई है, हर टेस्ट की भी सीवी दी हुई है कि सीवी से कम होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि शायद ट्रोपोनिन की ना हो, मुझे नहीं पता। ट्रोपोनिन जाहिर है नया टेस्ट है, अभी स्टेब्लिश हो रहा है, तो उसमें उन्होंने 10% सबने ने कहा 10% से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए क्यों इतना जोर है, इसलिए कि आपके क्लिनिशियन इस पर डिसीजन ले रहा है। नॉन स्टेमी में कोई ईसीजी चेंजेस नहीं है, आप सिचुएशन देखो ना, नॉन स्टेमी में कोई ईसीजी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपके टॉप के ऊपर वो उसने इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। तो वो टेस्ट तो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। ये जो डिवाइस वाला टेस्ट है इस पे तो नहीं होना चाहिए, लगता है कि हम सिर्फ डिवाइस पे करके दे देते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर बियरिंग मी फॉर अबाउट 90 मिनट्स। इंशाल्लाह परसों हम जो है ना वो क्वालिटी मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट करेंगे फ्राइडे को, और कोशिश करेंगे सिलसिला जारी रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।